all of you in the virtual interview series of Genesis of Education Impressionable Kids. So today we have a special guest with us. She is Dr. Ruby Vashisht. She is working as a principal in SPMS College of Education, Batala, Punjab. Her success tell her story by own. She is a woman of principles and strong determination. Her strong willpower proves her in every field. So let us talk with Dr. Ruby Vashisht about her journey from a teacher to a principal. My first question is, please explain your journey from teacher to principal. My journey from teacher to principal was a little difficult because I was teaching in the same institution and I have to raise to the position where you are a leader. And there was a hurdle from the colleagues also, from the management also, but I have to prove that can be the leader of yours, and I proved it and be a principal in the same institution at the same platform. Okay. So मैम आपके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा अपने आप को साबित करना कि आप एक अच्छी प्रिंसिपल हो सकती हैं. तो जो हर्डल्स आई और जो आपने अपने कॉलेज के लिए किया, मतलब कि जैसे कि आपने वहाँ पर कोई स्पेशल मैम कुछ प्रोग्राम कराए, वो सब कराया, तो मैम उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए. मेरे लिए मुश्किल इसलिए रहा क्योंकि मेरे कंपटीशन में सेम क्वालिफिकेशन के और सेम एक्सपीरियंस के टीचर्स मेरे साथ ही टीच कर रहे थे और उनके साथ compete करके फिर अपने लैब को साबित करके कि मैं ही अच्छी एक प्रिंसिपल हो सकती हूँ, तो उस पोजीशन पे आई हूँ. उसके लिए मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट करना पड़ा. हर बार मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम रहा होता था उसमें आगे आना पड़ा. ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी लीडरशिप चाहिए होती थी वो मुझे लग रहा था कि मुझे इसमें आगे आना चाहिए सो दैट उनको ये पता चले कि ये इन कामों में बहुत अच्छी है, तो उनका एक सपोर्ट मुझे मिलेगा कि हाँ अगर ये ऐसे काम कर सकती है तो इन आर एब्सेंस तो ये कॉलेज की अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम कर सकती है. हम लोगों ने कॉलेज शुरू किया था जी बीएड से, जो 2003 में शुरू किया, बट उसके बाद वी हैव टू ऐड ऑन डिफरेंट कोर्सेज. वी एडेड ईटीटी इन 2005 इन द सेम इंस्टीट्यूशन एंड along with that, not in the field of education, but we have to compile the group of institutions. So we made efforts to bring the courses like pharmacy, then law, then management, and then nursing also. We have ANM, GNM, BSc nursing and post-basis nursing, and that was a cooperation of all the members, but initiative was taken by me that we have to add on these courses in the same institution. और उसके डेज होती रही हैं, बच्चों को बाहर भेजना, कॉम्पिटिशन्स के लिए भेजना, उनकी तैयारी करवाना, जो इन करिकुलर एक्टिविटीज़ होती थी, यूथ फेस्टिवल्स होते थे, उनके लिए तैयारी करवाना, वो बाहर भेजते रहे हैं. हम लोग खुद यहाँ पे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स ये कंडक्ट कराना फॉर दी डेवलपमेंट ऑफ द फैकल्टी, वो भी होता रहा. मैम एज अ वुमन, सो यू हैव so many responsibilities, like in your home also you have to play your all roles, in college also you have to play your role, so it is difficult for you, or how you manage? It is always a difficult job because you have to keep a balance between the home and the institution. From home, it was never possible without your husband and the support of your kids. When they are with you, you can do anything in the world. Secondly, in the institution, you have to have the support of your colleagues because you alone can't build a house. It is the
combined work of your colleagues and the management. You have to take the support of all these. Without coordination, without their support, you can't do it. So there was a support of my family. It is still there because I am on the post where you have so many responsibilities. You have odd hours में भी आपको काम करना पड़ता है, बट उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि ये काम नहीं करना या इस टाइम पे काम नहीं करना. और सेम चीज़ जो है वो हमारी प्रिंसिपल्स की, जो कोलीग्स मेरे रहे हैं या अब हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं जो अब तक हैं मेरे पास, और मेरा जो मैनेजमेंट है, जो हमारे चेयरमैन हैं मिस्टर अशफी सेखरी जी, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर पाए. मैम, आपका कोई मैसेज यूथ के लिए? बिल्कुल, यूथ हमारा जो है वो हमारा नेशन बिल्डर है. जब तक यूथ नहीं चाहेगा हम अपने सपनों का संसार नहीं बना सकते. तो मेरे हिसाब से जो यूथ है उसको हार्ड वर्क करना चाहिए. आई कैन डू इट, वो जो एटीट्यूड होता है कि नहीं मुझे काम करना है, एंड आई कैन डू इट. I can support myself that I am a good one, good citizen. ये चीज़ उनको लेके आनी चाहिए. उनको डिसिप्लिन्ड लाइफ लेके आनी चाहिए और सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए, सो दैट जो नेशन वो चाहते हैं, जो काम वो चाहते हैं, जो उनके ड्रीम्स जब तक वो पूरे नहीं होते, जब तक वो कल्चर, वो डिसिप्लिन्ड लाइफ या वो सोसाइटी अपने खुद क्रिएट नहीं करते. मैम, जैसे एज ए वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर, सो बहुत सारी औरतें उस पोस्ट पर पहुंचना चाहती, जैसे आप प्रिंसिपल है या वो कोई और हायर एडमिनिस्ट्रेटिव वाली पोस्ट पर पहुंचना चाहती हैं, तो उनके लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो उस पोस्ट पर पहुंच सके? सबसे पहली क्वालिटी है वो तो ये है कि मैं एक लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमज़ोर हूँ या मैं कोई काम नहीं कर सकती. हम भी उतना ही अच्छी तरह से, मुझे लगता है कि हम बेटर काम कर सकते हैं, क्योंकि टॉलरेंस और डिसिप्लिन पावर जो है वो लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होती है. तो एक तो ये बिलीफ कि हम ये काम कर सकते हैं. दूसरा, अपने आप को हर चीज़ पे प्रूव करो दैट आई एम नॉट लेस देन एनीबडी एल्स. जब तक वो चीज़ नहीं आएगी, अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आइए, अपने आप में डिसिप्लिन लेके आइए, और दूसरों से काम कैसे निकलवाना है ये भी एक कला है. तो जब तक आप दूसरों से काम नहीं निकलवाओगे, आपका काम नहीं होगा. तो ये चीज़ें जो हैं वो अपनी लाइफ में लेके आइए, तो आप भी उसी पोस्ट पे या उससे हायर पोस्ट पे पहुंच सकते हैं जहाँ पहुंचना चाहते हैं. मैम, हार्ड वर्क कि आपके लिए क्या मायने हैं? आप क्या सोचती हैं मैम हार्ड वर्क के बारे में, कि हमें हार्ड वर्क करके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं या फिर हम स्मार्ट वर्क करके सक्सेसफुल हो सकते हैं? सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं. आपका एटीट्यूड क्या है उस काम के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं, आपका एप्टीट्यूड कैसा है कि वो जो काम आपको दिया गया है आप में कितनी कला है कि आप उसको मोल्ड करके सक्सेसफुल बना सकें. तो एक सिर्फ हार्ड वर्क लेके आप काम नहीं कर सकते, यू हैव टू वर्क स्मार्ट ऑल्सो. दोनों चीज़ें साथ लेके चलिए, फिर आपकी जो सक्सेस है वो कहीं नहीं जा रही, आपके पास ही आएगी. तो मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. इट वाज वेरी नाइस इंटरेक्शन विद यू, एंड आई होप कि आपके इन मैसेजेस से ये जो हमारी यूथ है जो अभी भटक रही है, उन्हें कुछ नई दिशा मिलेगी और वो आपकी तरह बनना चाहेंगे. क्योंकि मैम, जब भी कोई, स्पेशली इन केस ऑफ वुमेन, जब भी कोई वुमेन किसी अच्छी पोस्ट पर काम करती हैं तो वो बहुत सारे वो लड़कियों को और वुमेन को स्पेशली मोटिवेट करती हैं. सो आप मोटिवेट कर रही हैं बहुत सारे लड़कियों को जो आपको देखते हैं, जो पढ़ते हैं आपके कॉलेज में या आसपास के एरिया में, और वो आपको देखकर मोटिवेट होते होंगे कि किस तरह से आप काम करते हैं और किस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ा रही हैं. तो आप कहीं ना कहीं उनके मन में एक नई प्रेरणा जगा रहे हैं